असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ऐसी बल्कि कथा है कि जड़ी मैं समझनी है हर एक लिए सुनना जरूरी है। सो चल के कथा सुनने फिर करने उस ते विचार। गो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रो साध संगत जीओ, एक लड़ीवार विचार आप सरवण कर रहे हो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां दो पंक्तियां ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा महान वाक उसनों दास ने आधार बनाया होया है। आसा विच अत दुख घाना मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश सुख फल पाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा महान वाक, रे मन ऐसो कर सने आसा। धर्म की साधना मन की साधना है, तन की साधना नहीं। हे मन ऐसा सन्यास धारण कर, रे मन ऐसो कर सन्यासा। मन से सदन सब कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन जैसा ही तू सदन नु घर नु समझ, उजाड़ जैसे ही अपने घर नु समझ, और घर विच जो कुछ भी है सब कुछ नु उजाड़ समझ। निराश होके उदास होके तू परमात्मा दी निरंकार दी तलाश कर। ऐसा इस वास्ते कह रहे ने, जो संसार तो निराश नहीं उदास नहीं, वो निरंकार दी तलाश करेगा ही नहीं करेगा। जो इस जीवन तो निराश नहीं उदास नहीं, वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। आम मनोविज्ञानक कहते ने हृदय नो निराश करना बड़ा औखा है। एक उदाहरण देने, जब लग श्वास तब लग आस। हर श्वास दे नाल कोई ना कोई आस ते चलती, मुश्किल है। इस मुश्किल का हल सानू गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। आसा वाए निराश वलाए, नेचो नानक करते पाए। निश्चय करके जान, उन्हों करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों? आसा माए निराश वलाए। जो आशा विच निराश होकर रहिंदा है, ये किस तरह होगा? चलो आशा ते चल दी है, श्वास देना, निराश होना बड़ा औखा। जे आशा पूरी हो गई है तो फिर तू इस तरह समझ, इस वास्ते पूरी हुई है। प्रभु की आशा भी यही सी, वो भी यही चाहता सी, तां होई। एक जे आशा नहीं पूरी हुई, इच्छा नहीं पूरी हुई, तो प्रभु कुछ और चाहता है। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, तो ਉਹਦੀ रजा ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ढंग ਨਾਲ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, नेछो नानक करते पाए। निश्चय करके जानो ਨੂੰ करते पुरख ਦੀ प्राप्ति हो जाती। पर एक गल बड़ी लाजमी है, संसार ही महान है और इतनी प्रबल आशा है, निरंकार दी आस पैदा ही नहीं होती। इतना प्रबल
ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਪ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਸਦਨ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਜੈਸਾ ਸਮਝ, ਜੰਗਲ ਜੈਸਾ ਸਮਝ। ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ, ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਗਤ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਬਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ, ਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਗੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਨੇ ਨਗੀਨ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਗੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਘਿਰਣਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, तो फिर मनुख खोना चाहता है, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਖੋ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਖੋ ਲਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਖੋ ਦੇ। ਖੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਮੰਗ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਵੀਰੇ,
दरसरम अज इश्क सौदा ए बिरे, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मुर्शद। देना है ते ओ अखां दे जिहड़ियां निरंकार नूं वेख सकदियां, और कुछ भी नहीं। देना है ते सिर दे च ओ प्यार दे कि एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल सुदाई हो गया, पागल हो गया। पातशाह अजे ते लोकी मैनू कवि कहते ने, ज्ञानी कहते ने, विद्वान कहते ने, मैनू अजे किसी ने पागल कहना शुरू नहीं किया। बोल मैं फिर थानू सरवण करावां। या इलाही चश्मे बीना ए बिरे, चश्म अखा नहीं दा। या इलाही चश्मे बीना ए बिरे, दरसरम अज इश्क सौदा ए बिरे। ऐसा इश्क दे, ऐसा प्यार दे, एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गया, सुदाई हो गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। किहदा? एक पागल दा, एक संत दा नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना, एक भगत दा, एक पागल दा। समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। पागल दी गल इतनी नीवी, ओदी जिंदगी इतनी नीवी, पैरां दे थल्लों लंघदी है। संत दे बोल इतने उच्चे सिर दे उपरों लंघदे, तो दोहां नाल तालमेल नहीं बैठदा। कई दफा आम बंदियां नूं पहचानना भी औखा हो जाता है, इहदे च पागल किहड़ा है ते संत किहड़ा है। बुलेखे च कई दफा बड़े बड़े महापुरुषों नूं लोकी पागल कह देंदे ने। दूर क्यों जाओ, जगत गुरु बाबा कहते हैं कोई कहे भूतना को कहे बेताला। मैनू ते कई भूतना कहते, बेताला कहते। कबीर भी कह लेने, लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम ही जाना। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे, कोई ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी सब पागलों की भीड़ है। की है? कुछ भी नहीं। पर ये दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। नंद लाल कहते हैं, मेरे पातशाह अजे मैनू किसी ने सुदाई नहीं आख्या, ज्ञानी आख्या। अजे मैनू किसी ने पागल नहीं आख्या। सारे विद्वान कही जाते हैं, कवि कही जाते हैं, शायर कही जाते हैं। दर सरम अज इश्क सौदा ए विदे, मेरे सिर दे चो प्यार दे, दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए। यार इलाही चश्मे बीना ए विदे, वो अखां दे जो प्रभु नूं वेख सकदियां, परमात्मा नूं वेख सकदियां, ऐसी अखां दी दृष्टि अमृतमई आउंदी है। पत्थर नूं नगीना बना देंदी, मनुख नूं देवता बना देंदी। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बहादुर शाह एक औरंगजेब का लड़का सी। बहादुर शाह दे बच्चियां नूं नंद लाल पहले पढ़ाते हुंदे सन आगरे दे। शायद आपनूं पता होवे, ट्विटर नूं परशियन दे अतालीक कहंदे ने। नंद लाल दे नाम दे नाल अतालीक लिखिया है। अतालीक छोटे छोटे बच्चियां नूं, नवाबां दे, बादशाहां दे बच्चियां नूं पढ़ाउण वाला, घर दे च जाके। नंद लाल अरबी फारसी पढ़ाते सन। उस पढ़ाउण दे कुरान शरीफ दी आयतां दे अर्थ भी दसने आउंदे सन। अरबी भाई साहब जी जानदे सन। एक दिन कुरान दी एक आयत दे परशियन दे इतने गजब दे अर्थ कीते, चूंकि सारे मुगल सम्राट परशियन बोलते सन। उस वक्त लंघे बुजुर्ग औरंगजेब बुढ़ा हो चुके, बिरध हो चुके। ये अर्थ ओदे कन्ना च पे, हैरान हो गया। ऐसा रोशन दिमाग, ऐसा रोज रोशन जमीर बंदा जिदी रूह दे जितनी चमक है, दमक है।
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮੁਰਾਦ। ਰਾਤ ਦਾ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਰਾਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਸ ਜਾਓ ਹੁਣੇ। ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਲਓ, ਨਸ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਘਟਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਜਾ, ਨਸ ਜਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਹੋ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਧਨੀ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ। ਬੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ, ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਾਖ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣੇ, ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
नंद लाल की कदर नहीं की, भांडे मांजण ते मंजिल दर मंजिल तय करके ये सौरा परिवार के शरीक आनंदपुर साहब पहुंचे ने। पर कई दिन भांडे मांजदियां मांजदियां रब्बी तरंगे दे लहरां विच रहिंदियां हर मनुख दा अपना ओहरा हुंदा है, आभा हुंदा। उत्थे सब ब्रह्म ज्ञानी रसक पुरुष, फिर सतगुर, उन्हां दा ओहरा आभा। कहंदे ने पूर्ण पुरख दी जिहड़ी आभा है ते मस्तक दे कोलों जिहड़ा तुसीं गोल दायरा एक चक्कर देखदे हो, इहनूं संस्कृत दे आभा कहंदे ने। एक पूर्ण पुरख दा ओहरा आभा घट तो घट 10 मील तो लैके 15 मील तक प्रभावित करता है। उस आभा दे दायरे च जेड़ा आ जाता है, अगर वो थोड़ा जिहा भी जग्यासू है तो असर अंदाज हो जाता है। इस वास्ते कहा गया साउद के संग नहीं किछ गाल, दर्शन भेटत होत निहाल। उस आभा दे च रहिंदियां सिर्फ भांडियां दी कालख ही भाई साहब नहीं धो रहे सन, मन दी कालख भी धुलदे सी, विद्या दा गरूर भी धुल गया, इलम दा गरूर भी धुल गया। अज शरीक पहुंचे ने, राख नाल लिबड़े हुए कपड़े देख के, मुंह मत्था हथ कालख नाल भरे होया देख के शरीक समझाण लग पे ने, किथे आ गया, इहदे नालों बेहतर सी तू मुल्तान आ जांदा, असी तैनूं कोई यतन करके भेज देंदे, गजनी भेज देंदे, कंधार भेज देंदे, किथे आ गया। इन्ना छोटी दा आलम फाजिल हो के सारा दिन भांडे मांजना, साडे तक खबरां पहुंचियां। हुण शरीकां नूं भाई साहब समझांदे ने, उन्हां दे बोल मैं तुहाडे सामने रखा। नसीहा ता चंद गोई, नसीहत करण वाले हो, नसीहत ना करो। शिक्षा देण वाले हो, शिक्षा अपने कोल रखो। नसीहा ता चंद गोई, किस्सा है वा अजूपन, बज में मस्तां अस, इंजा किस्सा हो अफसाना नेस्त। ये मस्तानियां दी महफिल है, ये रंग रतनियां दी महफिल है। नंदलाल पागल हो गए, नंदलाल पागल हो गए। थोड़ी नसीहत नंदलाल तक नहीं पहुंचेगी, पैरों के थल्लों लंघ जाती, एक पासे करो। मैं रंग रतनियां दी महफिल दे च आ गया। सतगुरु भी पहुंच गए। शरीक जो उच्ची उच्ची डांट के समझा रहे सन, वो भी सतगुरु ने बोल सुन। जैसे सतगुरु पहुंचे ने, नंदलाल सजदा करते ने। महाराज कहने ने, नंदलाल वाकई असी तेनों कुछ नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके। सुने हैं बादशाह ने तेनों बैठण वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी, और तेनों 500 मोहरा महीने की तनख्वाह मिलती सी। तेनों उन्होंने रहने वास्ते हवेली दी हुई सी, नौकर चाकर दिते हुए सी। तेरा और भी मान सन्मान काफी सी, असी तेनों कुछ नहीं दे सके। हुण नंदलाल दे बोल सुनना ते फिर मैं अगे चला। हाथ जोड़ के नंदलाल कहने ने, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त। ये नंदलाल दा ग्रंथ दीवाने गोया दे च नज़म दर्ज है। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व कौजे कुल कुलारी नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, एक दफा कोई भिखारी, गदा है, गदागर भिखारी नु कहने, एक दफा कोई भिखारी थोड़े इस नेड़े गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना दी बादशाही नू लत मार देंदा है, ठुकरा देंदा है,
ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ? ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੋਰਾ ਮੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ नेस्त, हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुलाही नेस्त। तमन्ना ही नहीं रही बादशाह होने दी, धन संपदा दी तमन्ना ही नहीं रही। हे गुरुदेव, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां प्रभु दी प्यास पैदा हो गई, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां रब्बी तड़प पैदा हो गई, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां संसार तो मन निराश हो गया, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां पदार्थां तो मन निराश हो गया है। हे गुरुदेव, प्रभु दी आस पैदा हो गई। हुण मैं दो जहानां दी बादशाही नूं भी ठोकर मारदा। इस दर ते बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, निरंकार दी तलाश नहीं करेगा। इस जीवन तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परम जीवन दी तलाश नहीं करेगा। ये लाजमी है, लाजमी है, जरूरी है। निराश जिहड़ा फिर हो जाता है, वो घर नूं जंगल जैसा उजाड़ जैसा समझण लग पैंदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माया उदासा। अपना घर ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, परिवार ही सब कुछ है और इसे वासे ही जीवना है तो निरंकार कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहता है रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा निस। क्यों निराश हुई है, क्यों उदास हुई है? संसार बड़ा रंगीन है, नित नमा रूप, नित नवें रंग रूप जब दुनिया विच मौजूद ने। क्यों उदास हुई है, क्यों निराश हुई है? नहीं होंदा। ये दुनिया बड़ी रंगीन है। इसनों पंजाबी च कहने ने, ये जग मिठा अगला कहन डिठा, छड़ो अगले दी गल छड़ो। है बड़ी है दुनिया, बड़ा कुछ है। यही बाबर कह रहा है, जितनी अकल मोटी होवे संसार वड्डा हो जाता है, जितनी अकल मोटी छोटी होवे संसार महान हो जाता है, और जितनी अकल वड्डी हो गई, महान हो गई, उतना संसार बेमैनी हो जाता है। ये भी महसूस करते हैं। पहला मुगल सम्राट ते ये कहता है। इस तो ही पता चलता है कितने कठोर तबीयत दा सी, कितनी मोटी अकल दा सी, कितनी सीमित बुद्ध दा ये मालिक सी। पर आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिहदे हथों अंग्रेज़ां ने दिल्ली दा तख्त प्राप्त किया, उन्होंने पकड़ के बर्मा दे च रंगून दी जेल दे च बंद किया। बेचारा मरिया भी उत्थे, ਉਹਦੀ कब्र भी रंगून दे च। ये फकीर तबीयत बंदा सी। 5 वक्त नमाज तो इलावा घंटा 2 घंटा अल्लाह अल्लाह दा जप भी करदा सी। तो इनू रस भी आण लग पिया सी। ओदा अनुभव मैं थोड़े सामने रखा, जो अपनी नज़म दे च कहंदा है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, ये सारा संसार उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी बेग सच कर जानिया। कहता है बहुत वड्डे शहर दे च रहिंदा है। महाराज जी कहते बहुत वड्डी उजाड़ दे च रहिंदा है। मनुख ते मनुख नाल टुटिया होया है। किहड़ी गल दा जो है शहर है? मनुख ते मनुख नाल टुटिया है, बंदा ते बंदे नाल टुटिया है। कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई मेला नहीं। कहता सारा संसार मैनू उजाड़ प्रतीत होंदा है। बहादुर शाह जफर बंदगी करदियां करदियां कुछ खेड बन गई, अनुभव मिल गया। लगता नहीं है दिल मेरा
उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इस कच्ची दुनिया विच पक्की जिंदगी किसनों मिली है? इस कच्चे संसार विच पक्के महल किसदे बने? किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। अगे चल के कहंदा है उमरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। कहंदा खुदा तो बड़ी लंबी उम्र में लेके आया 4 दिन। इन्हू एक होर फकीर इंज कहंदा है जो कुछ मैं हाँ ऐ मेरे खुदा अद्धा समा अद्धी शक्ति मेरी लग गई उसनों छुपाण विच, मैं उसते पढ़दे पाए। और जो कुछ मैं नहीं हाँ अद्धी जिंदगी अद्धी शक्ति मेरी लंघ गई उसनों प्रगट करन विच। उम्मीद है गल पकड़ चाहिए होगी। कहंदा जो कुछ मैं नहीं हाँ उसनों ते मैं प्रगट करदा रहा, और जो कुछ मैं हाँ उससे मैं पढ़दे पांदा रहा। बस जिंदगी मेरी इस तरह ही लंघी है, जीवन मेरा इस तरह ही लंघे। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। ए अरमान ए इच्छावां ए तड़प। ये कह रहा है अभ्यासियों नूं फरियाद पिया करदा है ये मेरे हिरदे चों कढो, किसी होर जगह जाओ। दरअसल एक अवस्था जद बनती है जप करदियां ते इच्छावां बोझ लगदियां ने, ते बंदा इच्छावां नूं कढना चाहता निकलदियां ने। भरतरी रोंदे होया कहंदा है वैराग शतक दे विच, और शायद आपनूं पता भी भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 शब्द उचारण कीते आसा राग दे विच। प्राणायाम दी साधना नाल इसने अपनी उम्र बड़ी लंबी कर लई सी, बहुत लंबी कर लई सी। ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। साधना का फल सिर्फ इतना ही मिलिया सी कि उम्र लंबी हो गई, क्योंकि प्राणा नूं रोकण दी विधि आ गई। श्वासां नूं रोक लैंदा सी। 6-6 महीने साल श्वास चलदे ही नहीं, तो उम्र लंबी हो गई। उम्र लंबी ते हो गई, जीवन सफल ना होया। जीवन लंबा ते हो गया, सफल ना होया। गुरु नानक दे चरनां ते मथा टेक के इसने कुछ प्रश्न कीते ने। उन्हां प्रश्नां दा खोलना ते विचार इस वक्त वो तो मैं थोड़े सामने नहीं रख सकांगा। पंक्तियां रख दिया 3 शब्दां दियां। सिफती रत्ता सदवै रागी जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत दारे। ये पहला शब्द। दूसरा, जल पे उपजे जल ते दूर, जल में जोतरे भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेराड़। इन्ना महान ज्ञान सुन के भरतरी हाथ जोड़ के कहंदा तुहाडा पंथ केड़ा है? किस पंथ दे बानी हो तुसी? तुहाडा केड़ा पंथ है? पंथ रस्ते नूं कहंदे ने, तुहाडा केड़ा रस्ता है? मैं उस दिन भी अर्ज की सी, इस्लाम एक रस्ता है, जैन एक रस्ता है, बौद्ध एक रस्ता है, हिंदू एक रस्ता है, सिख एक रस्ता, सब मार्ग ने परमात्मा तक पहुंचण दे रस्ते ने। रस्ता कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई विंगा टेढ़ा हो सकता है, पर सारे रस्ते प्रभु दे रस्ते ने। सारियां ही नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, पर सारियां दे अपने अपने रस्ते ने। गंगा अपने रस्ते ते जांदी, गोदावरी अपने रस्ते ते, सिंध अपने रस्ते ते, इराक दा दजला फिराक अपने रस्ते ते। जद सागर दे च मिल जांदे ना दजला, ना फरात, ना गंगा, ना जमुना, ना सतलज, ना ब्यास, सागर दे सागर ही सागर। जैसे जब कोई लीन हो जाता है सब कुछ खो जाता है। ये भी मैरिज करा, फिर उसकी हालत बन जाती है, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध। वो तो धर्म का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, हुण रस्ते ते है ही नहीं, वो पंथ दे च है ही नहीं। पंथ ते जो चलदा उन्होंने कहते पंथी, उर्दू दे च कहते राही। पंथ नूं उर्दू दे च कहते रस्ता, रस्ते ते जिहड़ा चले राही। संस्कृत दे च कहते पंथ, जिहड़ा चले उन्होंने कहते पंथी।
ਤੂੰ ਰਾਹੀ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ, ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੰਨੇ ਮਗ ਨ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪੰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨੀ ਆ? ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇਤਨੀ ਸੋਚ, ਇਤਨੀ ਸਮਝ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾਇਆ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ, ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਨੇ, ਵਰਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਅਜਮਾਤ ਰਮਾ ਅਬ ਤੂੰ ਭਜ ਆਨ ਕਿਸੇ। ਐ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ। ਐ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ। ਜੋ ਤੋਏ ਭੋਗਨ ਹੇਤ ਭਜੇ ਤੁਮ ਸੇਵ ਤਿਸੇ। ਐ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਸਦੀ? ਲਾਗਤ ਕੀ ਨਿਸਪ੍ਰਿਯਨ ਕੀ ਚਹੀਅਤੀ ਨਾ ਲਜੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਿਆ। ਧਨ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਿਆ। ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਅਜਮਾਤ ਰਮਾ ਅਬ ਤੂੰ ਭਜ ਆਨ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦਾ, ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖੇਡ ਬਣਿਆ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਭਰਤਰੀ ਦੁਖਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਅਜਮਾਤ ਰਮਾ ਅਬ ਤੂੰ ਭਜ ਆਨ ਕਿਸੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਹਸਰਤੋਂ ਸੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਹੀਂ ਔਰ ਜਾ ਬਸੇ, ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਦਿਲੇ ਦਾਗਦਾਰ ਮੈਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰ। ਇਹ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੋਟ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਏ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਨੀ।
अगर ये बहुत गहरा स्रोत है, बड़ी गहराई नाल सुन रहा है, पाठ जो कर रहा है, मेरा घास नहीं कट रहा, मेरे में भज दौड़ नहीं मचाई इसने, पूरे ध्यान पूर्वक लगन नाल ये पाठ कर रहे है, ऐसा पाठ जप हो जाता है, ऐसा पाठ सिमरन हो जाता है, फिर किसी दिन शब्द चोट कर जाता है। जब शब्द चोट कर जाता है तो आदत की बनती है। धन गुरु रामदास जी महाराज दसदे ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर भरैया। शब्द फिर इंज लगता है जिमें तीर। हुण मैं दोहरावां, तीर तन नूं लगे खून निकलेगा, तीर मन नूं लगे लोभ निकलेगा, विकार निकलणगे। तीर तन नूं निकले लगे खून निकलदे होया मनुख तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। बहुता खून निकल जाण नाल कंठ खुश्क हो जाता है, पानी मंगदा है। शब्द दा तीर मन नूं लगे, अंदरों लोभ निकले है, विकार निकले ने। ये तड़पदा होया मन, तुसीं आखोगे तड़पदा क्यों मन? मन दी जिंदगी लोभ है, ये जीवदा ही लोभ दे च। मन दी जिंदगी विकार है, ये उहदे च जीवदा है। जैसे गुरु दा शब्द बाण बन के इसनूं लगदा है, इहदे चों विकार निकलदे ने, इहदे चों लोभ निकलदा है। ये फिर तड़पदा होया मन करदा है वाहिगुरू वाहिगुरू। ये वाहिगुरू करना कुछ होर है, ये वाहिगुरू आखना कुछ होर है। हुण साहिब कहते हैं मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। पीड़ ते बड़ी हो गई। ईश्वर ने एक नियम बना रखे है, एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है। एक स्त्री ने तो प्रसूत दी पीड़ा तो लंघना ही पेगा, लंघना ही पेगा। रब ने नियम बनाया, प्रभु ने नियम बनाया। एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है, एक पीड़ा तो लंघना ही पेगा। अपने मन दे चों ही परम आनंद नूं जन्म देना है, परम रस नूं जन्म देना है, परम प्रकाश नूं जन्म देना है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछान, बड़ी भयंकर पीड़ा तो लंघना पैंदा। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। बड़ा जिक्र है। समा इजाजत नहीं पिया देंदा, पर सामने आ गया भाई साहब का एक सवैया, मैं तुहानूं सरवण कराण लगा। ये पीड़ कितनी कहती है। जद शब्द का तीर लगता है, मन चों विकार निकलते हैं ते प्रभु की तड़प पैदा होती है। ये पीड़ कितनी होती है, ये तुसी सुनो। भाई साहब भाई गुरदास कोलों, भाई साहब का सवैया है। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, सस्सर अनेक रोम रोम कर गात है। जीवदा जागदा मनुख ज्वाला बलदी अग दे च गिर जाए, जलन लग पै। उस जीवदे जागदे मनुख नूं जलदियां जो पीड़ा आउंदी है, मानसिक ते सरीरक, भाई साहब कहंदे ने इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, बहुत गहरे पानी दे च डुब रहा होवे, गोते खा रहा होवे, बचण दी कोई उम्मीद ना होवे। ऐसी हालत विच मानसिक ते जो सरीरक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, वो भी इकट्ठी करिए। इस सारी पीड़ा का बकायदा आप अपने ध्यान विच रखी जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरा नाग फनियर सप, जहरीला नाग डंग मार जाए, जहन चढ़नी शुरू हो जाए, प्राण निकलने शुरू हो जान, उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहंदे ने यह भी इकट्ठी। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे,
शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे ते खून वग रहा होवे। ऐसी हालत दे च जिहड़ी पीड़ा है इनू भी इकट्ठा करिए। रोम रोम जख्मी होवे। एक फकीर ते कहंदा है, हमा तन दागदार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने हम। पुराने जमाने जरा दा कम सर्जन दा कम वैद लोग करते सन, उन्होंने जरा कहते सन, मरम पट्टी वो करया करते सन। ये फकीर कहता है रोम रोम जख्मी है ते रोम रोम दे जो खून वग रहा है, फाहा केड़ी केड़ी थां ते रखेगा, पट्टी किस किस थां ते बन्नेगा, केड़ी जगह बन्नेगा। रोम रोम जख्मी है। हमा तन दार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने हम। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, खून वग रहा होवे। भाई साहब कहते हैं ये पीड़ा भी इकट्ठी करी। एक पंक्ति च इतनी पीड़ा, दूसरी पंक्ति च बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्परात है। बिरथा अनेक लोड़ा बहुत सारिया वन ते पूरी एक भी ना होवे। खाण नूं भोजन चाहिए नहीं है, पहनण नूं कपड़े चाहिए नहीं है, रहण नूं मकान चाहिए नहीं है, बीमार है दवा दारू चाहिए नहीं है। लोड़ा अनेकां ने पूरी एक भी ना होवे। ऐसी हालत विच मानसिक ते शरीरक जो पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत। बड़ा भयंकर रोग होवे कोई शरीरक ते ओहदे नाल पीड़ा हो रही होवे, वो भी इकट्ठी करी। पराई अधीनगी दे च रहना पै रहा होवे ते कसूर भी कुछ ना होवे ते अगला मालक गालां कड्ढी जाए, ताड़ना करी जाए। कसूर भी नहीं, कोई गलती भी नहीं ते ताड़ना करी जा रहे, गालां कड्ढी जा रहे ते सहारनियां पैण, सुननियां पैण। उस समय जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्परात है। गर्मी तो सर्दी तो बरसात तो बचण दा कोई उपराला ना होवे। दिन रात गर्मी च रहना पै रहा होवे, दिन रात ठंड दे शीत लहर दे च रहना पै रहा होवे ते दिन रात बरसात दे च रहना पै रहा होवे, बचण दा कोई उपराला ना होवे। तीसरी पंक्ति गौ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। मैं छेती छेती करदा पिया। कुछ इस तरह के बज्जर पाप ने करन तो बाद मन बेचैन हो जाता है और मन इन तड़पदा जिवें जल तो बिना मछली। किहड़े बज्जर पाप? गौ नूं मारना, भगत नूं मारना, कुल दा घात करना, विश्वासघात करना, गुरु नाल द्रोह करना और अनेका तरह की पदार्थां की हर वक्त अंदर तृष्णा रखनी। इस दे नाल जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, ये भी इकट्ठी करिए। पाप किवें मानसिक पीड़ा देंदा है, अलग मनोविज्ञान है, किसी वक्त फिर तुहाडे सामने रखांगे। इन्हां तीन पंक्तियां तो बाद चौथी पंक्ति भाई साहब दसदे ने, चलो तीन भी मैं तुहानूं नाल ही सुणावां। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्परात है। गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सो दे पिया के बिछो पल एक ना पुजात। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है ना, उस एक पल दे च जिहड़ी पीड़ा है, ये सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुण तुसीं खुद अंदाजा लाओ, भगत कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है, नाम अभ्यासी कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है। लागी होए सो जाने पीर राम भगत अणयाले तीर। तो पीड़ तड़पा देवेगी, रुला देवेगी। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वह चले जियो। गुरु नानक ने इस दे उत्ते एक बड़ा सोहना ख्याल दिता है।
बट हंस राग दे वो भी कह रहे मैं रोवंदी सब जग रुना रुनड़े वणों पंखेरू एक न रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। मैं रोई रिजक दी खातर सारे ही रोंदे, पशु पक्षी तक रोंदे ने रिजक ना मिले। मैं रोई परिवार दी खातर, बच्चों दी खातर, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक भी तड़प उड़दे ने अपने बच्चों वास्ते। विछोड़ा बच्चों का सारियां नूं तड़पा देंदा है, विछोड़ा रिजक दा रोजी दा सारियां नूं तड़पा देंदा है, तड़पा के रोना भी निकल आंदा है। महाराज कहते एक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है, न तेरे विछोड़े ने तड़पाया ना ही रुलाया। मैं रोई रिजक दी खातर, तेरी खातर नहीं। मैं रोई परिवार दी खातर, तेरी खातर नहीं। मनुखा दे रोने सुन लेना, परिवारक रोने होने ने, संसार दे रोने होने, रब दे रोने कोई नहीं। एक ना रोना मेरे तन का विरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। साहिब के विछोड़ा ते प्रभु तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने मैनू तड़पाया भी नहीं, रुलाया भी नहीं। वाकई संसार दा नक्शा बड़ा सोहना खिटे, तड़पदा ते है संसार, रोंदा भी है संसार, पर ए रोना रब्बी रोना नहीं है। दो चशम मन के दरियाए अजीम उलशान ए गोया जहर अफकम बवद शादाबी सरबाग बाग ही जा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने मेरी अखां दे निकले दो हंजो जो प्रभु प्यार दे च निकले ने, इन्हां ने जन्मां जन्मांतरां दे पाप गुनाह सब धो दिते, सब धो दिते। खैर मैं बहुत जो है लमकावा लागी होए सोचाने। बहुत वधिया कथा सीगी, आनंद नाल भरी हुई कथा सीगी कि इस जहान दे उत्ते दो राह है इंसान को, या तो वह रब का राह चुन लवे ते या दुनिया का चुन ले। ते हुंदा की है ज़्यादातर साडे वर्गे जिहड़े सारे है वो दुनिया नूं अहमियत दिंदे है, कि भुल जाते हैं कि अगर रब की खुशी हासिल करने लिए तुर पांगे ना तो दुनिया साडे पिछे आप आ जाएगी, सानू दुनिया पिछे जाण की लोड़ नहीं पैगी, ये अपने आप साडे नाल जुड़ जाएगी। क्योंकि जिदों ते रब मेहरबान हो जाता ना, कायनात की हर शै वो लिए आसानियां पैदा करनियां शुरू कर देंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना शुरू कर देंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुहब्बत करनी शुरू कर देंदी हैगी है। ते असी इन्ने ना समझ है कि सानू धार्मिक तौर ते इन्नी समझ ही नहीं है कि असी रब की खुशी नू हासिल करिए, ਉਹਨੂੰ अहमियत दईए। अगर ਉਹਦੇ पिछे ਚੱਲਾਂਗੇ ना तो फिर ये दुनिया ਦੀਆਂ खुशियां अपने आप साडी ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ यही वजह है कि सानू अपनियां इबादतां दे विच रस नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता हैगा। असी अगर इबादत करनी होवे या करनी शुरू कर दईए तो साडे मन च तरह तरह के विचार चलन दे हुंदे आ, जिहड़े काम नहीं करने वो भी ख्याल आई जांदे हुंदे आ। बस ये हुंदा जल्दी जल्दी करके ना फारग हो के ते जाइए अपने कम्मां जिहड़े करने वो करिए। पर जदों असी फजूल कम्मां च बह के टाइम जाया करने हुन्ने उदों कदी ऐसे विचार नहीं आए, उदों मगन होईदा, पूरा ध्यान उत्थे लाया हुंदा, क्योंकि साडा अंदर उंजदा है, जिंज दा अंदर हुंदा उंज दे विचार हुंदे है। असी अंदरों वो चीज़ां पसंद करनी है, इसलिए तो सानू उन्हां च आनंद आउंदा, उन्हां च रस मिलदा है, जिहड़ियां सानू रब तो दूर करदियां। अगर असी अल्लाह की खुशी चाहिए, अपने रब की खुशी साडे लिए ज़्यादा अहम होवे ना, तो फिर सानू इन्हां चीज़ां तो उकताहट होवे, बेजारगी आवे, इन्हां तो भज्जीए। पर नहीं, असी मोबाइल अगर हाथ च फड़िया होएगा, भावें नींद भी आउंदी ही है ना, नींद उड़ जाएगी, कदी कोई ऐप खुल जाएगी, कदी कोई चीज़ देखण लग पाएंगे, कदी कोई चीज़ देखण लग पाएंगे।
ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਣ ਦੇ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੇ ਦੇਖੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਢਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਢਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਅੱਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਥਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਸੀਗੀ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।